Ji, Bismillahirrahmanirrahim. My name is Mohammad Mahmood Amir and I will be teaching you biology for class 10th today. As you know that we have been studying chapter number 11 in which we were discussing about the homeostasis, which means that how we can maintain the internal body conditions despite the changes in the external environment. मीन्स आउटर एनवायरनमेंट में चाहे जो मर्जी चेंजेस आती रहें, जैसे मर्जी एटमॉस्फेयर में तब्दीलियां आती रहें, वेदर वाटर कंटेंट इज चेंजिंग, वेदर ह्यूमिडिटी इज चेंजिंग, वेदर temperature is rising or decreasing, the human body will not be disturbed by it and will maintain its internal conditions at constant level so that the body may perform efficiently. This is basically homeostasis. In the previous lecture, we were discussing about homeostasis in plants, that how do they maintain their internal composition at a constant level, in which we studied that how they get rid of excess carbon dioxide and oxygen, and later on we studied that how they remove the how they get rid of excess amount of water and other metabolic wastes. And then we were discussing about the maintenance of osmotic balance, means water कैसे उनकी body के अंदर level रहता था means हमारे पास there are basically three main types of plants. First were hydrophytes, the second were xerophytes, and the third were halophytes. ठीक है, hydrophytes were the plants that were present in the water at all times, मीन्स वो हर वक्त पानी के अंदर प्रेजेंट होते थे. आइदर दे वर fully submerged in the water or they were partially submerged in the water, means that their in some cases their roots, leaves, branches, everything was present in the water, and in certain other cases only a certain portion of the plant was underwater and the rest of the portion was above water. Okay, so in today's lecture we will discuss about the xerophytes. Xerophytes are basically the plants that live under extreme shortage of water, means they are present in the desert areas, such regions where there is a very little or no rainfall, and they have to conserve excess amount of water in order to survive in such conditions. ठीक है, मतलब क्या है कि आपके पास जीरोफाइट्स वो प्लांट्स हैं जो हार्श कंडीशंस में रहते हैं, ऐसी कंडीशंस में रहते हैं जहां बारिश नहीं होती, जहां नेचुरल वाटर जो है उसकी अबंडेंस नहीं है, बल्कि क्या है, शॉर्टेज है, बहुत कम प्रेजेंट है. ठीक है, तो ऐसे प्लांट्स की हमने मॉडिफिकेशन पढ़नी है कि हाउ दे हैव अडॉप्टेड देमसेल्फ टू सर्वाइव इन सच कंडीशंस, कि उन्होंने अपने अंदर क्या क्या तब्दीलियां लाई कि वो फिर इन सच हार्ड कंडीशंस में भी सर्वाइव कर लेते हैं. ठीक है, जीरोफाइट्स लिव इन ड्राई एनवायरनमेंट्स. मैंने अभी आपको यही क्लियर किया, ड्राई एनवायरनमेंट्स मींस डेजर्ट एरियाज. ठीक है, वेयर देयर इज अ वेरी लिटल और नो रेनफॉल. ओके, वेरी लिटल और नो रेनफॉल, जहाँ पर बारिश या तो होती ही नहीं है या हो भी तो बहुत कम होती है. सच कंडीशंस आर नोन एज ड्राई एनवायरनमेंट्स. Then how do they store excess amount of water? As we know that when there is little or no water in the external atmosphere, the water will evaporate from the plant body due to excess transpiration. So they will have to devise a way in order to reduce that transpiration, means they must conserve excess amount of water. Their stomata must be kept at such places where the transpiration will be minimum. ठीक है, तो इन्होंने क्या करना है, इन्होंने अपने स्टोमेटास को सुप्रेस करना है ताकि उसमें से कम ट्रांसपायरेशन हो. ठीक है, और हमें पता है कि स्टोमेटा बेसिकली कहाँ प्रेजेंट होते हैं, लीव्स के ऊपर मोस्टली प्रेजेंट होते हैं. तो ये क्या करेंगे, इन्होंने अपने अंदर ऐसी मॉडिफिकेशंस लाई हैं कि इनके ऊपर लीव्स ग्रो नहीं करते. ठीक है, जब लीव्स ग्रो नहीं करेंगे तो ऑब्वियसली स्टोमेटा का रेट जो है या जो स्टोमेटा का की कंसंट्रेशन है वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी. स्टोमेटास विल बी रिड्यूस्ड. नाउ इन बुक व्हाट डिड ही से, ही सेड दैट दे possesses thick waxy cuticle over their epidermis to reduce water loss from internal tissues. ठीक है, अब देखें इंटरनल टिश्यूज ने वाटर क्या कर लिया, कंजर्व कर लिया कहीं से भी. से फॉर एग्जांपल देयर रूट्स हैव पेनिट्रेटेड सो डीप दैट दे हैव फाउंड अ सोर्स ऑफ वाटर, और दैट rarely when it rain falls
लॉट ऑफ वाटर इज बीइंग कंजर्व्ड फॉर यूज फॉर लेटर यूज। ठीक है, क्या हुआ कि एक तो बारिश हुई, तो रेयरली जब भी कभी बारिश हुई तो प्लांट ने क्या किया, बहुत सारा पानी जो है वो अपने अंदर एक्यूमुलेट कर लिया। ठीक है, और दूसरा ये कि इनकी जड़ें, क्योंकि ये डेजर्ट जो है वो रेतली ज़मीन होती है, नरम सी ज़मीन होती है, तो इनकी जड़ें पेनिट्रेट करती रहती हैं, ठीक है, अंदर की तरफ डीप जाती रहती हैं और काफ़ी डीप तक चली जाती हैं कि कोई ना कोई वाटर सोर्स या जो मॉइस्चर है वो इन्हें मिल जाता है। ठीक है, तो अब वो जब मॉइस्चर इनको मिल गया, वो पानी इनको मिल गया, तो हाउ डू दे कंजर्व इट? दे कंजर्व इट बाय modifying their stems and leaves. They possess thick means एक हेल्दी सी लेयर होगी, मोटी सी लेयर होगी, एंड वैक्सी क्यूटिकल। क्यूटिकल हमने पढ़ा था लास्ट चैप्टर में, फर्स्ट टॉपिक में। क्यूटिकल बेसिकली क्या होती है? लीफ के ऊपर एक शाइनी लेयर। ठीक है, लीफ के ऊपर एक शाइनी सी लेयर होती है जो उसको ब्राइट अपीयरेंस दे रही होती है। वो बेसिकली क्या कर रही है इन पौधों में? वो क्या कर रही है, एपिडर्मिस के ऊपर प्रेजेंट है, और वो वैक्सी नेचर की है। वैक्सी नेचर की से मुराद ये है कि उसकी और वाटर की आपस में कोई उसकी अफेक्शन नहीं है। ठीक है, उसकी और वाटर की कोई आपस में अफिनिटी नहीं है। मींस जहाँ पे देखें, हमें पता है ना, मोमबत्ती का जो वैक्स है उसके ऊपर अगर आप पानी डालते रहो तो पानी खड़ा नहीं होता, पानी बह के चला जाता है, बिकॉज ऑयल एंड वाटर आर नॉट लाइक, दे डू नॉट मर्ज विद वन अनदर। ठीक है, तो वैक्स आपके पास काइंड ऑफ फैट ऑयल होता है, तो उसकी और पानी की आपस में नहीं बनती। तो वेक्सिक्यूटिकल क्या करेगी? वेक्सिक्यूटिकल एक ऐसी लेयर बना देगी कि उसके अंदर से अब पानी जो है वो इवेपोरेट नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो इस तरह आप जो इंटरनल टिश्यूज के अंदर वाटर स्टोर है वो क्या होगा? इवेपोरेट नहीं हो पाएगा, वो ट्रांसपायर नहीं हो पाएगा। ठीक है, दे हैव लेस नंबर ऑफ स्टोमेटा टू रिड्यूस द रेट ऑफ ट्रांसपायरेशन। लेस नंबर ऑफ स्टोमेटा रखे जाते हैं ताकि रेट ऑफ ट्रांसपायरेशन को क्या किया जा सके? कम से कम बनाया जा सके, क्योंकि हमें पता है ट्रांसपायरेशन कंटिन्यूज एट ऑल टेम्परेचर्स, चाहे दिन हो चाहे रात हो, ट्रांसपायरेशन क्या है? कंटिन्यू रहती है। ठीक है, ठंडा इन्वायरमेंट हो, गर्म इन्वायरमेंट हो, ट्रांसपायरेशन ने होते रहना है। अब ट्रांसपायरेशन होती कहाँ से है? स्पेसिफिकली थ्रू स्टोमेटल ओपनिंग। तो जब स्टोमेटा आपके पास नहीं होंगे या स्टोमेटा कम होंगे तो ट्रांसपायरेशन भी ऑब्वियसली क्या होगी? कम होगी। ठीक है, such plants have deep roots to absorb maximum water from the soil. Deep roots means इनकी जड़ें जो हैं वो जमीन के अंदर बहुत नीचे तक पेनिट्रेट कर लेती हैं। ठीक है, ऊपर पौधा आपको बेशक छोटा सा नजर आएगा लेकिन उसकी जड़ें क्या होंगी? बहुत दूर तक पहुंची होंगी, बहुत नीचे तक जाएंगी, ताकि क्या कर सकें? नीचे से मैक्सिमम अमाउंट ऑफ वाटर को, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ मॉइस्चर को एब्जॉर्ब कर सकें। ठीक है, जैसे कुआं खोदा जाता है या बोरिंग की जाती है तो पानी कहाँ से आता है? नीचे से आता है ना। तो नीचे वाली कंडीशंस में यानी इंटरनल अर्थ की तरफ, कोर ऑफ अर्थ की तरफ वाटर प्रेजेंट है। ठीक है, तो वो जो वाटर की प्रेजेंस है वो क्या करती है? इन रूट्स को अपनी तरफ ग्रो करवाती है, और ये फिर तब तक ग्रो करती रहती है नीचे की तरफ जब तक ये वाटर का सोर्स ढूंढ नहीं लेती, और फिर ये वहां से क्या करती हैं? अपनी वाटर की रिक्वायरमेंट्स को पूरा करते हैं। ठीक है, अब इन प्लांट्स के अंदर एक स्पेसिफिक ऑर्गन होता है जिसे सक्कुलेंट ऑर्गन्स बोलते हैं। ठीक है, दीज प्लांट पोजेसेस अ स्पेसिफिक ऑर्गन नोन एज सक्कुलेंट ऑर्गन्स। अब बेसिकली सक्कुलेंट ऑर्गन होता क्या है या इसका काम क्या है, देखते हैं जी जरा इसकी डेफिनेशन। says that some xerophytes have special parenchyma cells in stems or roots in which they store large quantities of water. This makes their stems or roots wet and juicy, called succulent organs. ठीक है, अब बेसिकली ये क्या है जी? कह रहा है कि जीरोफाइट प्लांट्स के अंदर, अब देखें हमने पढ़ा है प्लांट्स के अंदर दो किस्म के स्पेसिफिक सेल्स होते हैं, एक पैरेनकाइमा सेल्स होते हैं, एक कोलनकाइमा सेल्स होते हैं। अगर आपने 9th में वो टिश्यूज और सेल्स वाला याद हो तो उसके अंदर ये चीजें थोड़ी डिटेल में पढ़ाई गई थी। ठीक है, तो अब पैरेनकाइमा सेल्स इनके क्या हुए हैं? थोड़े से मॉडिफाई कर दिए गए हैं, किस चीज के अंदर? ठीक है, अब देखें पैरेनकाइमा सेल्स प्रेजेंट कहाँ पे हैं? स्टेम में और रूट्स में। ठीक है, और इनके अंदर मॉडिफिकेशन क्या लाई है? दैट दे कैन स्टोर लार्ज क्वांटिटीज ऑफ वाटर। मींस अब ये नॉर्मल प्लांट ने जितना पानी स्टोर करना था उससे क्या करेंगे? ज्यादा पानी स्टोर करेंगे। ठीक है, दिस मेक्स देयर स्टेम्स और रूट्स वेट एंड जूसी। अब जब इन्होंने नॉर्मल से ज्यादा पानी स्टोर कर लिया तो देयर स्टेम विल बिकम वेट, जारी बात है वाटर है तो इंटरनल कंडीशंस क्या हो जाएंगी? वेट एंड जूसी। जूसी मींस अगर आप उसको सक करेंगे तो उसके अंदर से पानी निकलेगा। ठीक है, कॉल्ड सक्कुलेंट ऑर्गन, जिसको क्या नाम दिया गया है? फिर सक्कुलेंट ऑर्गन्स का नाम दिया गया।
अब इस सकुलेंट ऑर्गन्स का फायदा ना सिर्फ प्लांट को होता है बल्कि डेजर्ट में रहने वाले इंसानों को, डेजर्ट में रहने वाले जानवरों को, सबको पहुंचता है। क्यों? अल्लाह ना करे आप में से कोई शख्स डेजर्ट में ट्रैप हो जाता है, ठीक है, तो आपको जहां पर कैक्टस वगैरह नजर आएगा, जहां पर कोई डेजर्ट प्लांट नजर आएगा, आप उसको तोड़ो, उसके अंदर से आपको पानी मिल जाएगा, ठीक है। आप उसको केयरफुली काटें, केयरफुली काटने के बाद उसको सक करें, तो उसके अंदर से आपको अच्छी क्वांटिटी में पानी मिलेगा कि जिससे आप अपनी प्यास को सेटिस्फाई कर सकते हैं, ठीक है। आपको हाइपोथर्मिया नहीं हो सकता, सॉरी, आपको एक्सट्रीम हीट की वजह से वाटर लॉस जो है उससे आप बच जाओगे, ठीक है, और आपको हीट स्ट्रोक नहीं होगा। इसकी एग्जांपल आपको मैंने बता दी, कैक्टस आर द कॉमन एग्जांपल ऑफ सच प्लांट्स। अब बेसिकली हेलोफाइट्स जो थर्ड टाइप है, उसके अंडरस्टैंडिंग से पहले हमें ऑस्मोसिस का पता होना चाहिए। बेसिकली व्हाट इज ऑस्मोसिस? ऑस्मोसिस इज द मूवमेंट ऑफ वाटर फ्रॉम हाइपोटोनिक सॉल्यूशंस। हाइपोटोनिक मींस ऐसा सॉल्यूशन जिसके अंदर सोल्यूट कंसंट्रेशन कम है। मींस आपने एक बड़ा ग्लास पानी का लिया है, उसके अंदर थोड़ी सी चीनी मिलाई है, ठीक है, तो कम चीनी होने की वजह से वो सॉल्यूशन क्या है? हाइपोटोनिक है। क्यों? क्योंकि उसके अंदर सोल्यूट की कंसंट्रेशन कम है। समझ गए? ठीक है। हाइपोटोनिक वो होगा इन विच द कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूट इज लेस एज कंपेयर्ड टू सॉल्वेंट, ठीक है। अब ऑस्मोसिस में क्या हो रहा है? मूवमेंट ऑफ वाटर फ्रॉम हाइपोटोनिक सोल्यूशन मींस वहां पर वाटर क्या है? ज्यादा, टू हाइपरटोनिक सॉल्यूशंस मींस वहां पर वाटर की कंसंट्रेशन क्या है? कम। इसको आप आसान अल्फाज में कह सकते हैं, फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टुवर्ड्स लोअर कंसंट्रेशन। मूवमेंट ऑफ वाटर फ्रॉम higher concentration towards lower concentration through a semi-permeable membrane. Semi-permeable membranes I have told you several times, as and you will have studied in the 9th class a lot of times, that semi-permeable membranes are those membranes which allow the movement of certain particles across them while fencing the other. Means कुछ टाइप ऑफ मॉलिक्यूल्स उनमें से इजीली गुजर जाते हैं और कुछ टाइप के मॉलिक्यूल्स जो हैं वो उनमें से चाह कर भी नहीं गुजर पाते, ठीक है। इसकी मिसाल ऐसे दी जाती है जैसे आपके पास किसी मिलिट्री एरिया के बाहर बैरियर लगा होता है ना, ठीक है, वहां पर चेकिंग हो रही होती है, ठीक है, जो उस जगह से, उस डिपार्टमेंट से कंसर्न लोग होते हैं, उनको तो उस बैरियर से गुजरने की इजाजत होती है, वो इजीली आ जा सकते हैं, लेकिन एक आम सिविलियन पर्सन उस बैरियर को क्रॉस नहीं कर सकता, ठीक है। तो वो क्या बना देता है? उसको सेमी परमिएबल। इसी तरह जो ऑस्मोसिस है वो भी क्या होती है? एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के जरिए होती है। मींस वहां से सर्टेन टाइप ऑफ मॉलिक्यूल्स वाटर के साथ बाइंड होकर गुजर जाएंगे, बाकी कुछ टाइप ऑफ मॉलिक्यूल्स जो हैं वो बच जाएंगे, ठीक है। नाउ मूव ऑन, लेट्स मूव ऑन टू हेलोफाइट्स। Halophytes live in sea waters and are adapted to salty environments. As we know that the concentration of salt in sea water is much higher as compared to the fresh water. ठीक है। समंदर के पानी के अंदर नमक का कंटेंट इतना ज्यादा होता है कि वो आप पी नहीं सकते, वो आप पिए तो आप बीमार हो जाते हैं, ठीक है। तो कह रहा है कि अब हेलोफाइट्स ऐसे प्लांट्स हैं जिन्होंने कंटिन्यूसली उस पानी के अंदर रहना है, ठीक है, उन्होंने सी वाटर के अंदर रहना है, ठीक है। अब उनके अंदर अडाप्टेशंस आ गई हैं, उन्होंने अपने आप को मॉडिफाई कर लिया, अपने अंदर चेंजेस ले आए हैं टू सर्वाइव इन सच साल्टी कंडीशंस, ठीक है। उनको फर्क नहीं पड़ता इतने ज्यादा नमकीन पानी में रहने से। हाँ, उनकी मॉडिफिकेशंस का उन्हें ये नुकसान आप कह सकते हैं कि उनकी मॉडिफिकेशन की वजह से अब वो सिर्फ और सिर्फ साल्टी इन्वायरमेंट में रह सकते हैं। अगर आप किसी समंदर के पौधे को निकाल कर फ्रेश वाटर में लगाएं तो वो मर जाएगा, ठीक है, उसकी बॉडी उस चीज की आदी नहीं है। या कोई आप फ्रेश वाटर प्लांट जो है वो उठाकर साल्ट वाटर में लगाएं, साल्टी वाटर में लगाएं या सी वाटर में लगाएं, then that plant will also die because it is also not able to it is not also in synchronization with such condition, means उसको उस conditions में survive करने का नहीं पता, ठीक है। जैसे एक छोटा बच्चा होता है वो माँ बाप के बगैर नहीं रह सकता। क्यों? माँ बाप जो है उसकी हर रिक्वायरमेंट पूरी कर रहे होते हैं, लेकिन जब वही बच्चा मैच्योर हो जाता है तो वो क्या करता है जी, अब उसे पता चल गया मैंने अपनी ज़िंदगी में कैसे सर्वाइव करना है, क्या चीज़ें अच्छी हैं क्या चीज़ें बुरी हैं, फिर वो वालिदैन के बगैर भी रह लेता है, ठीक है। तो प्लांट्स की मिसाल आप ऐसे ही ले लें, फ्रेश वाटर में लगाया, फ्रेश वाटर उसको क्या कर रहा है, उसने उसको इस तरह का आदी कर दिया कि अब वो और किसी जगह नहीं रह सकता, किसी और एनवायरनमेंट में नहीं रह सकता, ठीक है। तो इसी तरह अब ये जो हेलोफाइट्स हैं, दे हैव अडॉप्टेड देमसेल्फ टू लिव इन
salty conditions. Salts enter in the bodies of such plants due to their higher concentration in sea water. अब देखें पौधे के अंदर नॉर्मली साल्ट कम होता है, लेकिन सी वाटर के अंदर साल्ट की कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा है. तो हमें पता है कि जो साल्ट की कंसंट्रेशन है वो भी हायर से क्या करेगी, लोअर की तरफ मूव करेगी. इट मीन्स दैट द इनर कंडीशन ऑफ द प्लांट सेल विल बिकम मोर कंसंट्रेटेड. मोर कंसंट्रेटेड मतलब एक्सटर्नल सी इन्वायरमेंट से एक्सेस अमाउंट ऑफ साल्ट जो है वो सेल्स के अंदर मूव करता रहेगा एंड द प्लांट विल बिकम सॉल्टी. ठीक है, प्लांट के जो सेल्स हैं वो क्या हो जाएंगे, कंसंट्रेटेड हो जाएंगे, उनके अंदर साल्ट कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी. On the other hand, water tends to move out of the inner cells in the hypertonic sea water. अब देखें हमें पता है कि जिस तरफ वाटर की कंसंट्रेशन हायर है उसने उससे ऑपोजिट मूव करना ही करना है. तो अब सेल के अंदर चूंकि साल्ट की कंसंट्रेशन पहले कम थी, तो इसका मतलब क्या है, वाटर की कंसंट्रेशन ज़्यादा थी एज कम्पेयर टू द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट. तो साल्ट क्या करेंगे, टूवर्ड्स द सेल मूव करेंगे और वाटर क्या करेगा, आउट फ्रॉम द सेल मूव करेगा. ठीक है, वाटर विल move out of the plant cell and salts will move towards the plant cell. मीन्स पानी जो है वो बाहर आना शुरू हो जाएगा और साल्ट जो है वो सेल के अंदर जाना शुरू हो जाएगा. When salts enter into the cells, अब क्या हुआ देखें, आपके पास एक दफ़ा ऐसा हुआ कि साल्ट जो है वो अंदर आ गया. ठीक है, साल्ट की कुछ कंसंट्रेशन सेल के अंदर दाखिल हो गई है. Plants carry out active transport to move and hold large amount of salts in vacuoles. अब क्या किया जाएगा, अब एक्टिव ट्रांसपोर्ट करवाई जाएगी. एक्टिव ट्रांसपोर्ट हमें पता है क्या होती है. एक्टिव ट्रांसपोर्ट जो है वो डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस के ऑपोजिट है. एक्टिव ट्रांसपोर्ट पे हमें एनर्जी देनी पड़ती है और कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के अगेंस्ट काम करवाना पड़ता है. ठीक है, हमें एनर्जी देकर जबरदस्ती एक काम करवाना पड़ता है. क्या अब यहाँ पर देखें जो फोर्सफुली काम करवाया जा रहा है वो क्या है कि व्हेन साल्ट एंटर इनटू द सेल, जब सेल के अंदर साल्ट आया तो अब साल्ट की कंसंट्रेशन सेल के अंदर क्या हुई है, बढ़ गई है. साल्ट की कंसंट्रेशन सेल के अंदर बढ़ जाने के बावजूद उसको बाहर नहीं आने दिया जाता. ठीक है, उसको वापस बाहर नहीं आने देंगे, बल्कि क्या करेंगे, एक्टिव ट्रांसपोर्ट के जरिए मोर एंड मोर साल्ट विल बी डिपॉजिट और एंड एक्यूमुलेटेड इन द सेल एंड विल बी स्टोर्ड इन द वैक्यूल्स. ठीक है, क्या किया जाएगा कि ज्यादा से ज्यादा साल्ट को बाहर से सेल के अंदर लाकर वैक्यूल के अंदर स्टोर कर दिया जाएगा. अब जो प्लांट है वो क्या हो गया है, उसकी अंदर जो साल्ट की कंसंट्रेशन है वो सराउंडिंग सी वाटर की निस्बत क्या हो गई है, बढ़ गई है. ठीक है, इस पॉइंट को समझ लें कि क्या होगा कि जब एक दफा पौधे के अंदर साल्ट की कंसंट्रेशन बढ़ी, ठीक है, तब उधर से एक्सेस अमाउंट ऑफ साल्ट को वापस बाहर आना चाहिए था, बट इट विल नॉट हैपन. व्हाट विल एक्चुअली हैपन इज दैट प्लांट विल इनिशिएट एक्टिव transport mechanism and it will start accumulating more and more salt and will store it into the vacuoles. ठीक है, तो मतलब क्या हुआ कि पौधे के अंदर साल्ट की कंसंट्रेशन बढ़ना शुरू होगी तो फिर क्या होगी, बढ़ती ही जाएगी. ठीक है, अब क्या होगा, salts are not allowed to move out through the semi permeable membranes of the vacuoles. अब वैक्यूल की जो मेम्ब्रेन है वो क्या है, सेमी परमिएबल है. सेमी परमिएबल का मतलब ये है कि वाटर तो उसके अंदर से आ जा सकता है, लेकिन वैक्यूल्स के अंदर से साल्ट मूव नहीं कर पाता. ठीक है, वो इम्परमिएबल है उसके लिए, उसमें से साल्ट को मूव नहीं करने देती. जितना साल्ट वैक्यूल ने स्टोर कर लिया वो उसके अंदर accumulated रहेगा. So the sap of vacuoles remains even more hypertonic than the sea water. अब सेल सैप बेसिकली ये होता है कि वैक्यूल के अंदर जो फ्लूइड और मैस प्रेजेंट है ना, ठीक है, यानी वो जो नमकीन वाला पानी था जो वैक्यूल के अंदर स्टोर हो गया, उसको सैप का नाम दिया. अब सैप में सिर्फ वाटर और साल्ट नहीं होगा बल्कि और भी चीजें होंगी. ठीक है, फूड कंटेंट होगा और मिनरल्स वगैरह होंगे, बहुत कुछ होगा, इसलिए इसको क्या नाम दे देते हैं, सैप का. ठीक है, sap of vacuoles remains even more hypertonic than sea water. ठीक है, अब वैक्यूल की कंसंट्रेशन सी वाटर से भी क्या हो गई है, बढ़ गई है. ठीक है, इन दिस वे वाटर डज नॉट मूव आउट ऑफ द सेल्स. तो अब फिर क्या करेंगे, बाहर से पानी जो है वो सेल्स की तरफ मूव करेगा ताकि उसको डाइल्यूट कर सके, अंदर से पानी बाहर नहीं आएगा. मींस पौधे को मजीद पानी की शॉर्टेज फेस नहीं करनी पड़ेगी. अब इसके अंदर जो कॉमन एग्जांपल्स हैं वो सी ग्रासेस हैं और दूसरी समंदर में पाए जाने वाले और हर्ब्स वगैरह हैं. ठीक है, जिनको आप
अक्सर देखते होंगे डॉक्यूमेंट्रीज, तो वहाँ पर आपके पास जो जिस किस्म के प्लांट्स नज़र आ रहे हैं बेसिकली दे आर नोन एज सी ग्रासेस। ये आज था आज का हमारा टॉपिक। इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन फील फ्री टू आस्क। अगर यहाँ तक आपको कुछ समझ नहीं आई तो आप पूछ सकते हैं। कोई चीज़ रिपीट करनी है तो बता दें, मैं रिपीट कर देता हूँ। एनी क्वेश्चंस? ओके जी। अच्छा बच्चों, हाइड्रोफाइट आज के लेक्चर की स्लाइड्स में तो नहीं प्रेजेंट, आप लोग अपने पास बुक्स खोल लें तो मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ एक दफ़ा दोबारा, ठीक है। इन द प्रीवियस लेक्चर आई वाज टॉकिंग अबाउट हाइड्रोफाइट्स। अब हाइड्रोफाइट्स आपके पास बेसिकली वो प्लांट्स थे विच वर कम्प्लीटली और पार्शली सबमर्ज्ड इन वाटर, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि या तो उनकी पूरी जिंदगी और पूरे का पूरा हिस्सा, ठीक है, पौधे के अंदर क्या होते हैं, जड़ें होती हैं, तना होता है, लीव्स होते हैं, ठीक है, रूट स्टेम लीव्स, एवरीथिंग ऑफ दैट प्लांट इज सबमर्ज्ड इन द वाटर और पार्शली सबमर्ज्ड। पार्शली सबमर्ज्ड मींस स्टेम का कुछ पोर्शन और रूट्स पानी के अंदर होंगी, बाकी लीव्स और ब्रांचेस जो हैं वो क्या होंगी, पानी से बाहर होंगी, ठीक है। दीज प्लांट्स आर नोन एज हाइड्रोफाइट्स, ठीक है। अब हाइड्रोफाइट्स देखें, नाम से पता चल रहा है कि ये पानी के अंदर प्रेजेंट है, मींस इन्हें पानी की कभी भी शॉर्टेज नहीं होगी। यहाँ तक क्लियर है, ठीक है। हाइड्रोफाइट्स ऐसे प्लांट्स हैं जिनको पानी की शॉर्टेज कभी भी नहीं हो सकती। अब जब इनको पानी की शॉर्टेज नहीं होगी कभी, अब जब इनको पानी की कभी शॉर्टेज नहीं होगी तो मींस इनके पास एक्सेस अमाउंट ऑफ वाटर स्टोर हो गया। एक्सेस अमाउंट ऑफ वाटर जब स्टोर हो गया तो फिर इन्होंने उस एक्सेस अमाउंट ऑफ वाटर से अपने आप को बचाना है, ठीक है। अब उस वाटर को क्या करना है, ज़्यादा से ज़्यादा इवेपोरेट करना है, ज़्यादा से ज़्यादा ट्रांसपायर करवाना है। तो फॉर दिस रीजन दे विल हैव ब्रॉड लीव्स एंड देयर स्टोमेटा विल बी केप्ट ऑन द अपर साइड ऑफ द लीव, ठीक है। नॉर्मल प्लांट्स में क्या होता है, जो आपके पास नॉर्मल अर्थ इस तरह टेरेस्ट्रियल एनवायरनमेंट्स में रह रहे होते हैं प्लांट, उनके लीव्स छोटे होते हैं और उनके स्टोमेटा कहाँ पर प्रेजेंट होते हैं, पत्ते के नीचे वाली साइड। लेकिन हाइड्रोफाइट्स में क्या होता है, उनका जो है वो लीफ का साइज बड़ा कर दिया जाता है और जो स्टोमेटा होते हैं उनको क्या कर दिया जाता है, अपर सरफेस के ऊपर प्लेस करवाया जाता है, ठीक है, विच इज ऑलवेज फेसिंग द सन। तो जब वो सन को फेस करेंगे तो स्टोमेटा क्या रहेंगे, हमेशा ओपन रहेंगे और उनके अंदर से एक्सेस अमाउंट ऑफ वाटर जो है वो इजीली ट्रांसपायर होता रहेगा, ठीक है। इसकी कॉमन एग्जांपल जो आपकी बुक में मेंशन है वो लिली है, ठीक है, लिली प्लांट, उसको उसकी डायग्राम भी आपकी बुक के अंदर मेंशन है। बस ये थी आपके पास हाइड्रोफाइट्स। एनी अदर क्वेश्चन? Yes, there are no leaves in xerophytes, but if you can observe in this diagram or the diagram which is made on your book, you will see that their stems are made up, their stems are green in color, ठीक है, means they do not have woody stem, they do not have woody stem, and the green, any green portion which is present in the plant possesses stomata, ठीक है। ये बात समझे। आपने क्वेश्चन बहुत अच्छा किया है कि अगर जीरोफाइट्स के ऊपर लीव्स नहीं होते तो फिर तो उनके अंदर स्टोमेटा भी नहीं होंगे, तो वो एक्स्ट्रा कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन से कैसे रिमूवल, उसका रिमूवल कैसे पॉसिबल बनाएंगे। इट वाज अ वेरी गुड क्वेश्चन। तो उसका आंसर यही है कि although they do not have leaves but their stems are not woody, ठीक है, their stems are green in color and their stems possess stomata which are lesser in number as compared to the leaves। क्या बात की मैंने कि इनके जो स्टेम्स हैं वो वुडी नहीं है, ठीक है, वो ग्रीन है, वो सॉफ्ट हैं, उनके ऊपर स्टोमेटा प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। जिस तरह हमने पढ़ा था कि यंग स्टेम्स जो ग्रीन इन कलर होते हैं दे पोजेस स्टोमेटा, ठीक है, और उसी स्टोमेटा से वो गैसियस एक्सचेंज पॉसिबल बनाते हैं। तो यहाँ पर भी क्या होगा, दे हैव स्टोमेटा
विच आर लेसर इन नंबर एज कम्पेयर टू लीव्स, मतलब अगर पत्ते होते तो इनके ऊपर ज्यादा स्टोमेटा होते हैं, पत्ते नहीं है तो इनके ऊपर क्या है, कम स्टोमेटा है। तो वो जो थोड़े से स्टोमेटा हैं उन्हीं के जरिए एक्सेस कार्बन डाइऑक्साइड से और एक्सेस ऑक्सीजन से क्या करेंगे, गेट रिड ऑफ हो जाएंगे। मीन्स इनकी अंदर जो ऑक्सीजन बैलेंस है और जो कार्बन डाइऑक्साइड बैलेंस है वो क्या किया जाएगा, इस स्टेम के थ्रू मेंटेन किया जाएगा, स्टेम के ऊपर जो स्टोमेटा प्रेजेंट है उसके थ्रू मेंटेन किया जाएगा। एनी अदर क्वेश्चन? बेटा पीडीएफ आपको थोड़ी देर में ग्रुप में सेंड कर दिए जाएंगे। Any other questions? If you do not have any more questions, then I will end the class over here. Okay then students, I will be ending the class over here. Inshallah, we will meet with the new lecture in the next class. Until then, Allah Hafiz.